خبر تفصیل سے کابل پر طالبانی جنگجوؤں کے قبضے نے عالمی برادری کو چونکا دیا ہے۔ جموں کشمیر میں بھی سیکیورٹی اداروں کو تشویش ہے کہ طالبان کی فتح کا یہاں بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب پاکستان طالبانی جنگجوؤں کو جموں کشمیر کی جانب پھیر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت کو انتباہ دے کہ مستقبل میں افغان کی سرزمین سے ہند مخالف سرگرمیوں سے باز رہا جائے۔ اس حوالے سے دیکھیے ہماری خاص رپورٹ۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی، افغان کے حالات کا جموں کشمیر پر اثر پڑنے کا اندیشہ، دفاعی ماہرین نے جتائی تشویش، پاکستان صورتحال کا اٹھا سکتا ہے فائدہ، افغان سرزمین کو ہند مخالف سرگرمیوں سے باز رکھنے کی ضرورت۔ 15 اگست کو جب ہندوستان میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، اسی دوران افغانستان سے ایسی خبریں آنے لگی تھیں کہ طالبان کابل کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت افغان دارالحکومت پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر صحیح نکلی اور طالبان نے افغان فورسز کی مزاحمت کے بغیر کابل پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے سامنے افغان فوجیوں کی مکمل خود سپردگی نے دنیا بھر کے امن پسند لوگوں کو حیران کر دیا۔ جموں کشمیر کے رہنے والے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان نے انتہائی جارحانہ رخ اختیار کیا اور امریکہ و نیٹو فورسز کے خلاف لمبی لڑائی جیت لی۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی کمزور قیادت بھی طالبان کی فتح کا اہم سبب رہی۔ دیکھیے، افغانستان میں جو ہوا ہے، جس حساب سے افغان فورسز جو ہیں وہ اتنی جلدی کولیپس کر گئی، یہ درشاتا ہے کہ ایک مورال جو ہے ٹروپس کا وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ کی کمی تھی، اور تیسرا جس حساب سے امریکہ نے ایک دم وہاں سے وہ جو انہوں نے ابینڈن کر دیا افغانستان کو، اس وجہ سے یہ سارا ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ بن گیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے، میں کہوں گا تو یہ ایک اور سیریا بن جاتا، سول وار چلتی رہتی اور اسی حساب سے لوگ جو ہیں پریشان اور ہاتھ ہوتے رہتے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کو پاکستان اور چین کی مکمل حمایت حاصل ہے اور جہادی فورسز کو ان کا تعاون اب ایک کھلی حقیقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان حالات کی تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان جنگجوؤں کو جموں کشمیر بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان اب چین کی مدد سے افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کو ٹریننگ فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین بھی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ طالبان آپ کو پتہ ہے پاکستان کے انڈر ہی ہے، بنایا بھی پاکستان آئی سے ہی نے ہے، تو ان کو وہاں پہ سے ڈائریکٹ کر دے گا کہ جی آپ اب جو ہے آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں۔ وہ ایک ڈینجر ہندوستان کے لیے بہت بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جو انہوں نے ٹیرر کیمپس رکھے ہوئے ہیں POK وغیرہ میں، اور ہمیں پتہ ہے جہاں پہ کل کو یہ شفٹ کر سکتا ہے ادھر، یہ اپنے پختون کے آگے اس کے افغانستان کے بارڈر کے اندر شفٹ کر دے گا، تو پھر وہ بڑی ایک پرابلم ہے۔ چائنا پہلے سے ہی چاہتا تھا کہ یہ افغانستان کے اندر جو اس کے اگھر جو ہیں مسلم وہاں پہ، طالبان ان کو کہیں سپورٹ نہ کرے، وہاں ملیٹنسی وغیرہ نہ پھیلائے، تو اسی لیے اس نے میٹنگ کی تھی اور اس لیے آشواسن دیا تھا ان کو طالبان کو کہ بھئی دیکھیے میں پیسہ دوں گا، انویسٹمنٹ کروں گا، انڈسٹریز لگاؤں گا، آپ کا جو GDP ہے اس کو بڑھاؤں گا، پر آپ نے یہ چیز نہیں کرنی۔ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کے جو سارا جو تھا وہ اس نے پاکستان کو دیا، اسی حساب سے طالبان کو بھی وہ باقی چیزیں دے کے ہندوستان کے خلاف وہ کھڑا کر سکتا ہے۔ دفاعی و سلامتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ محتاط مگر جارحانہ رخ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق مرکزی حکومت کو افغان کی نئی قیادت سے سفارتی سطح پر بات چیت کرتے ہوئے واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہیے کہ مستقبل میں افغان سرزمین کو ہندوستان کے خلاف استعمال ہونے نہ دیا جائے۔ طالبان کے ساتھ اب ڈائریکٹ جو ہے ہندوستان کو اپنے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔
یہ طالبان مانتا ہے کہ ہندوستان نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ، تو ہم اور کام کریں گے، پرووائڈڈ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں جو مائنورٹیز ہیں، ہمارے ہندوز ہیں، سکھ ہیں، جو سارے ہیں، ان کا آپ دیکھ ہوگا کہ وہ جو لوگ ان کے پریشانی نہ ہو۔ تیسری بات، طالبان کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دینا چاہیے کہ بھائی ملٹنسی ہے اس کا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنی جو زمین ہے افغانستان کی زمین ہے، یا افغانستان کے ادھر سے طالبان کے فائٹر جو ہیں وہ بھی کسی طریقے سے ہندوستان کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے پاکستان جتنا مرضی کہہ لے۔ افغانستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں سیکیورٹی اداروں کو سرحد پر چوکسی بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ حالانکہ طالبان نے جموں کشمیر امور میں مداخلت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں اور مستقبل میں طالبان کی کسی بھی ناپاک حرکت سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات کریں گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد وہاں حالات کافی نازک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ہندوستان کا دوست ملک ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہاں کے عام شہریوں کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے۔ وہ جموں میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو افغان لوگ ہیں، افغانستان کے ناگرک ہیں، شہری ہیں، بچے ہیں، وہاں کی جو لیڈیز خواتین ہیں، وہ سب سرکشت رہنی چاہیے۔ کسی پرکار کے بھی مانوادھیکاروں کا ہنن ہمارے پڑوس میں نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے وشواس ہے کہ وہاں آتنکواد اور خون خرابے کا انت ہوگا اور افغانستان شانتی کی اور بڑھے گا۔ پرنتو اس سمے افغانستان کے حالات کافی نازک موڑ پر ہیں۔ بھارت سرکار نے بھی کہا ہے کہ افغان لوگوں کے لیے جو بھی سہایتا بھارت سے افغانستان کے لوگ جو اپیکشا کریں گے، بھارت ان افغانستان کے ناگرکوں کی ہر سمبھو سہایتا کرے گا۔ ادھر بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے قومی ترنگا لہرانے کے معاملے پر کشمیر کی مین اسٹریم جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہ لہرانے کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ کل پورا کشمیر یوم آزادی منا رہا تھا، مگر کچھ لوگ اس موقع پر بھی سوئے رہے۔ کول نے کہا کہ ان کی پارٹی اسمبلی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اب جو یہاں کچھ لوگ ہیں جو کل سوئے رہے، سارا جموں کشمیر کل جگمگا رہا تھا ترنگوں سے، لیکن کچھ لوگ سوئے رہے۔ بھگوان سے ہم یہی چاہیں گے کہ وہ سوئے ہی رہے تو اور اچھا ہوگا۔ کبھی بھی چناؤ آئے گا، بی جے پی تیار ہے، کیونکہ بی جے پی کا سنگٹھناتمک کام ہے، ہم چناواتمک کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا سنگٹھن شروع سے ہی آگے بڑھ رہا ہے، چناؤ آئے گا چناؤ میں بھی اتر جائیں گے۔ ہمارا آرگنائزیشنل بیسڈ کام ہے، تنظیم بیسڈ کام ہے، اس لیے ہم کو چناؤ جب بھی آئے گا ہم چناؤ کے لیے تیار رہیں گے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم نہ لہرانے پر تنقید کا سامنا کر رہی پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ کشمیر میں یوم آزادی کے موقع پر پارٹی دفاتر میں ترنگا لہرانے کی روایت نہیں رہی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہانجورا نے کہا کہ پی ڈی پی قومی پرچم کا احترام کرتی ہے، مگر وہ جموں کشمیر کا جھنڈا بھی واپس چاہتے ہیں۔ پارٹی لیول پہ کبھی بھی یہاں پہ یہ ترنگا ہوسٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے یہاں۔ میں یہ بات بتاؤں گا کہ یہاں پہ یہ ترنگا لہرانے سے تو سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا تھا کہ دلوں کو جیتنے کی بات ہے، دل کی دوریوں کو مٹانے کی بات ہے، تو وہ دل کی دوریاں ترنگا لہرانے سے نہیں ہٹ سکتی ہے۔ وہ دل کی دوریاں تبھی ہٹ سکتی ہیں جب آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں گے، اس میں ترنگا کا کوئی رول نہیں بنتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم ترنگا لہرانے کے خلاف نہیں ہیں، ہماری پارٹی ترنگا لہرانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس بات پہ ہماری جو ڈی ڈی سی چیئرمین ہیں، میں پلوامہ کی بات کروں، وہ پی ڈی پی کا ہے، اس نے بھی کل جھنڈا لہرایا ہے وہاں پلوامہ میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جموں میں لہرایا گیا ہم پی ڈی پی کی طرف سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ ترنگا ہمارا جھنڈا ہے، ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور لہرانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جھنڈا نہیں لہراتے ہیں، دوسری طرف کل ہی کا واقعہ ہے، 15 اگست کی فنکشن تھی شوپیان میں، اور ہمارے ڈی ڈی سی ممبر اعجاز صاحب کو جو ایکس ایم ایل اے بھی رہے ہیں، ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو راستے میں روکا گیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی،
تو مجھے بتائیے آپ کہ اگر یہ الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ جھنڈا نہیں لہراتے ہیں، ہمارا اگر کوئی فنکشن میں جانا چاہتا ہے کوئی ممبر، کوئی DDC ممبر، تو اس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ ضلع ڈوڈا میں GMC روڈ نگری کے قریب آگ کی ایک واردات پیش آئی۔ اس میں 2 دکانیں مکمل طور پر خاکستر ہو گئی ہیں، 2 رہائشی مکانوں کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرنٹنگ پریس میں دکان مالک ویلڈنگ کا کام کر رہا تھا، اس دوران دکان میں آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈوڈا قبضے میں ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے فائر سروس کی گاڑیوں کو پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ فائر سروس کے عملے کو خود ٹریفک کے لیے راہ ہموار کرنی پڑی، ایسے میں ان کے پہنچنے تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ کچھ مشینیں تھیں یہاں پہ جس سے ہم کام کرتے تھے، ہمارے کاریگر کام کرتے تھے، اور بھی آس پاس کے جو گھر ہیں ان کو بھی کافی نقصان ہو گیا ہے اور دکانوں کو کافی نقصان ہو گیا ہے۔ تو اس آگ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ خود مطلب راستہ بنانے کے لیے خود فائٹ کی، آگے پیچھے دوڑ دھوپ کے، اور فوراً یہاں پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے مل کے فوراً ایکشن کیا اور آگ کے قابو پایا۔ مکان بھی 2 ساتھ میں تھے، وہ بھی انوالوڈ ہونے والے تھے، ان کو بھی ہم نے بچا لیا ہے نقصان ہونے سے۔ بانی پورہ کے سنبل سوناواری علاقے میں شادی پورہ کے مقام پر دریائے جہلم کے پشتے کا ایک حصہ ڈھہ گیا۔ اس وجہ سے مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ محکمہ اریگیشن و فلڈ کنٹرول نے پشتے کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کارروائی شروع کی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے DC بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے افسران کی ایک میٹنگ کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا۔ ایک ٹیم کے ہمراہ انہوں نے علاقے کا دورہ کیا۔ DC نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اس حصے کی عارضی مرمت 4-5 روز تک کی جائے گی۔ مستقل بنیادوں پر پشتوں کو مضبوط بنانے کا کام بھی جاری رہے گا۔ جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، اس میں 4 دن کا ٹائم یہ بول رہے ہیں ٹیمپریری ریسٹوریشن کا، اس کے بعد یہ پرماننٹ بھی کرتے رہیں گے، تو 4 سے 5 دن لگیں گے ان کو۔ آج شام کو مشین آ جاتی ہے جس کو واٹر ماسٹر یہ بول رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کام 1-2 دن میں جب وہ پائلنگ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا آلموسٹ 90% کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو 4-5 دن کا یہ ٹائم ہے، اور اس میں آپ تب تک کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنڈ ہمارا آلریڈی مضبوط کر دیا۔ کشمیر کے کئی علاقوں میں چرس جنگل کی طرح اگ گیا ہے۔ ان علاقوں میں منشیات کے عادی لوگ صبح و شام نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہ تو عام لوگ اور نہ ہی انتظامیہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کر رہی ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے سری نگر سے نیوز 18 کے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی خاص رپورٹ۔ نٹی پورہ چھانپورہ کی یہ مشغول سڑک، یہ ہے دودھ گنگا کا بنڈ، اور یہ دونوں طرف گھاس کا جنگل۔ یہ پیڑ نما پودے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ اصل میں کوئی نرسری نہیں ہے، یہ کینیبس ہے، چرس کے پودے ہیں جس سے چرس نکلتا ہے۔ دودھ گنگا کے ان کناروں پر خودرو چرس کے یہ پودے کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ صبح شام نشہ خور ان پودوں سے نشہ حاصل کرتے ہیں اور نشہ خوری کے زہر کو سماج میں پھیلا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ان پودوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ نشہ ہر جگہ رکھا تو کہاں پاک ہوگا؟ آپ کے ہر جگہ اگ رہا ہے یہ آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائڈ پر دیکھیں کتنی اگی ہوئی ہے۔ صبح نوجوان، شام نوجوان تلان اتن پہ موران، امیک نسل گو نوجوان نسل گو ختم امہ سۭتۍ۔ یہ پھیریو سٲرسٕے کٔشیٖرِ۔ امہِ خٲطرٕ چھُ تُلان گورمنٹ قدم کانٛہہ، مطلب گورمنٹ اگر ذمہٕ وٲری چھِ ژٹان چھُنہٕ کِہیٖنۍ۔ لُکن تہِ چھِ ذمہٕ دٲری، مطلب اگر محلہٕ وول چھُ کانٛہہ آسان، محلہٕ کمیٹی چھِ آسان یا محلہٕ پننِس محلس منٛز چھِ آسان بچہِ دۄہ خراب، یِمن پٮ۪ٹھ چھُ آسان تمہِ طریٖقُک یُن پیش چھُ آسان اَنٕنۍ سُدھارس منٛز۔ یہِ چھُ سُہ چیٖزا یُس زہر چھُ، اَمہِ سۭتۍ گژھن سٲنۍ بچہِ تہِ وٲران، أسۍ تہِ گژھو، مطلب سون ماحول سورُے گژھان خراب، یہِ گوٚژھ یُن ژٹنہٕ۔ یہ خالی دودھ گنگا کے کناروں کی بات نہیں، بلکہ سری نگر میں کئی مقامات پر چرس کے یہ پودے خود ہی اگاتے ہیں۔ میونسپل انتظامیہ نے پچھلے کچھ عرصے سے دودھ گنگا کی صفائی تو کی، لیکن کناروں پر پھلتا پھولتا یہ زہر انہیں شاید نظر نہیں آیا۔ جب اتنی کوانٹٹی میں اویلیبل رہے گا اتنی جگہوں پہ، آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ایسی کوئی اوپن سپیسز ہوتی ہے یا ندی کے کنارے ایسے ہوتے ہیں، تو ہر جگہ پہ ایسے اویلیبلٹی رہتی ہے ان چیزوں کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوکلس کو اور اتھارٹیز کو ایک ساتھ آ کے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے ابھی کتنا ڈرگس میں انوالو ہو رہا ہے، ابھی کتنی ڈرگ ایڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانی بہت ضروری ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے تیندوے بھی باغ مہتاب اور اس سے منسلک مقامات پر دیکھے گئے ہیں، اور ایسا علاقہ نشہ خوروں کے ساتھ ساتھ تیندووں کے لیے بھی
मौजून जगह है। न जाने कितने अफसर, कितने ऐसे लोग जो नारा देते हैं कि नशे से पाक कश्मीर को करना है, इस रास्ते से गुजरे होंगे, रोज़ गुजरते होंगे, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आता। जो आमाजगा बना हुआ है ऐसे लोगों का जो नशाखोर हैं और जिनकी वजह से दूसरे बच्चे भी इस बुरी लत में मुब्तला हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज शायद उनकी आँख खुल जाए और ये देख पाएँ कि इसको साफ़ करना है, हमें नशा आवर अद्वियात को मुयस्सर नहीं रखना है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शाला टैंग श्रीनगर के लोगों ने इंतजामिया पर उनके इलाके के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाके की दाखिली सड़कें खस्ता हाल हैं और कई बरसों से उनकी मरम्मत नहीं की गई है। इलाके के लोगों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के सबब फैली गंदगी से भी परेशानी का सामना है। कचरे से बदबू फैल रही है और बच्चों के बीमार होने का खदशा है। मकामी लोगों ने मसाइल हल करने की अपील की है। वो शाल टैंक कोच क्या वनस ये गंदगी ये आय वुक तम 10 वरी गई ये तील आव मैकडम आव ये कोचन मज त्रावन की खास कर वनस शाल टैंकस मज मैकडम ना चीज़ कर गुजारिश डी.सी. श्रीनगर वन और कमिश्नर सबस तुम वो मौका तुम करू मौका शाल टैंकस क्या दलील SDM तहसीलदार सब तुम वो शाल टैंकस मज कुछ मुसीबत ऑलरेडी वनस लॉकडाउन चलान मुसीबत गरीब मंगान किस रुपये की तोमुल मंगान की। श्रीनगर में आज धर्मशाला बोतराज मोहल्ले से आज़ादारी का एक बड़ा जुलूस बरामद किया गया। ये जुलूस हसनाबाद से अदाकदल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में खासी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम, शहादत और सब्र इस्तकामत पर अमल करने पर इस मौके पर जोर दिया गया। जितने भी मुश्किल हालात में हमने गुजरना या दो चार होना पड़े, हमें सब्र को सब्र से काम लेना चाहिए और उन्होंने बुनियादी जो उनका हमारा फरीज़ा है इखलाक के साथ पेश आना चाहिए हमें, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तलकीन उन्होंने की है हमेशा हर वक्त। और उन्होंने अपने नाना हज़रत इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बाकी रखने की तलकीन की है। मुहर्रम में यही पैगाम है कि आप सच्चे बोलो, सच्ची ज़िंदगी बसर करो और ईमान से रहो और इखलाक अपनी अच्छी बनाओ। और इमाम हुसैन ने जो बोला है करबला में, उस नक्श कदम पर हमको चलने की हिदायत मिलती है इन जुलूसों से। इस बीच बडगाम के पतवाओ और खरीपुरा से भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस से अज़ा बरामद किया गया। अंजुमन शरिया शिया के बैनर तले जुलूस बरामद किया गया। अज़ादारों ने नोहा खानी की और हज़रत इमाम हुसैन और करबला के दिगर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस इमाम बाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में हिस्सा लिया। वहीं यकमनपुरा पटन में 7वें मुहर्रम की मुनासिबत से आम अलम शरीफ को बरामद किया गया। जुलूस अज़ा में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया खानी और नुहा खानी पेश करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस इमाम बारगाह वानी मोहल्ला यकमनपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इंतज़ामात जम्मू कश्मीर हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामुल्ला ने किया। जुलूस की निगरानी हुसैनी रिलीफ कमेटी के सदर मोहम्मद इसहाक वानी ने की। वहीं ज़िला बडगाम के मागाम में मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस बरामद हुआ। आस्तान मोहल्ला मागाम से अलम शरीफ बरामद होकर मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया खानी और नोहा खानी करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उधर इमाम बारगाह में उलमा ने भी शुहदाए करबला की अजीम शहादत पर रोशनी डाली। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इसीलिए शहादत दी थी कि हक दुनिया में पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है, इंसानियत क्या है, मजलूम क्या है, जालिम कौन है, ये पता चले दुनिया को। दुनिया में कि अमन हो, इंसानियत हो, हक का बालबाला हो और जुल्म और जालिम के खिलाफ एक आवाज़ हम निकाल।
मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में रियाजा टैंक श्रीनगर में एक मजलिस हुसैनी का अहतमाम किया गया। इस मजलिस में इमाम हुसैन की अजीम शहादत पर उलमा ने रोशनी डाली। इस मौके पर खतमातुल मुअज्जमात की मजलिस में मुनक्किद भी की गई। आलिम दीन अल्लामा शौकत हुसैन टैंक और दीगर उलमा ने फ़लसफ़े करबला पर इस मौके पर रोशनी डाली। वहीं मागाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अज़ादारों में मुफ्त मास्क तकसीम किए। मागाम पुलिस ने अज़ादारों के जुलूस में नोहाखानी के मुख्तलिफ दायरों में मास्क के बगैर अज़ादारों को मास्क पहनाई। मास्क पहनने की भी तलक़ीन की गई। पुलिस जवानों ने अज़ादारों को मास्क लगाए। मागाम पुलिस के इस इक़दाम की अज़ादारों ने सताइश भी की। माह मुहर्रम के दौरान वादी कश्मीर में मजालिस का अहतमाम हो रहा है। इस दौरान नोहा खानी की जाती है। नोहा खां शुरा से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नोहें तहरीर कराते हैं। देखिए बीरवा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। नोहा एक अदबी सिन्फ है। कश्मीर में नोहे की एक तारीखी अहमियत है। नोहे को ज़बानी याद किया जाता है। ये मश्क इस तरह की जाती है कि दायरे में शामिल तमाम अज़ादारों को नोहे के तमाम मिसरे ज़बानी याद होते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी जुलूस अज़ा में अपने पुरअसर लहजे में नोहा ख्वानी करते हैं। कि नवहा लिखना एक फ़न है। नवहा बज़ात ख़ुद एक बहुत ही मुस्तनद और मोतबर और एक अवामी मकबूल याफ्ता सिनफ है, और इस लिहाज से जो इसके लिए मखसूस जो अफराद हैं जिनकी आवाज़ बड़ी शाइस्ता, शुस्ता और बावज़न होती है और अपीलिंग होती है, तो वो लोग शायरों के पास जाकर, नवा निगारों के पास जाकर मुख्तलिफ़ धुनों पे या मुख्तलिफ़ अवज़ान पे नवाह लिखवाते हैं और फिर इसकी तैयारी करते हैं कि उसका वज़न करते हैं। तो हुसैनी पैगाम है जो इस हुसैनी क़याम का जो मकसद है उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नवाह का एक बहुत बड़ा अमल दखल रहता है। नवाह ख़ानी एक इजहार है अपना खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करने का, और ये एक अदबी सनब भी है। सानिया हुआ है करबला का, उसकी तवारीख़ उन्हीं नवाहों से आगे आ रही है और नई जनरेशन नवाहों के ज़रिए उस सानिया को याद करते। नोहा ज्यादातर जुलूसों में अलम या जरी उठाते वक्त पढ़ा जाता है। जुलूस अज़ा में एक नोहा ख्वा होता है और बाकी मजमा नोहा ख्वा के कहे हुए मिसरों या आशारों पर अमल पैरा होते हैं और कहे हुए मिसरों को दोहराते हैं। अज़ादार खासकर नौजवान नोहा पढ़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं। शोरा हजरात होते हैं, वो नवा लिखते हैं, फिर हम मशक करते हैं, और जब फिर अलम शरीफ का जुलूस निकलते हैं, जुलजना निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, फिर हम दायरे की शक्ल में नवाखानी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जुलजना का जुलूस बरामद होता है, अलम शरीफ का जुलूस बरामद होता है, तो उनमें हम दायरे की शक्ल में नोहाखानी पेश करते हैं और बआसानी से जो करबला का पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाते। तो फिर ये नोहाखानी हम जुलूसों में पढ़ते हैं, उसके बाद हम शोदा करबला के खराज अक़ीदत करते हैं। नोहा ख्वानी से न सिर्फ करबला का पैगाम आम होता है बल्कि अदब में इसे खास मुकाम हासिल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। बानीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में आज लोगों ने डंगीथल के मकाम पर ज़ेरे तामीर पुल पर काम सुस्त रफ्तारी से चलने के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इस पुल पर साल 2010 में काम शुरू किया गया। 11 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये पुल अभी भी मुकम्मल नहीं किया गया है। एहतजाजी लोगों का कहना था कि पुल ना होने की वजह से इलाके में मोबाइल टावर भी नस्ब नहीं हो रहा है। उधर SDM गुरेज ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि कुछ पुलों के लिए दरकार फंड्स वागुजार नहीं हो रहे हैं। अब पुल का तामीराती काम शुरू हुआ है। इन्हें उम्मीद है कि अगले माह ये पुल मुकम्मल होगा। जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट के अहकामात है कि चिनार के दरख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचने ना दिया जाए। ताहम महकमे PDD ही अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। महकमे की जानिब से शोपियां में चिनार के दरख्त पर बिजली के तार नस्ब किए गए हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे से मांग की है कि चिनार के दरख्त से बिजली के तार हटाए जाएं। हम यहाँ पे बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। ये 3-4 बार गिर गई। यहाँ पे हमारा गेट भी टूट गया, हमारा दीवार भी टूट गया 5-6 बार। अब इन्होंने यहाँ पे तार लगाई है इस पे, तो हमें इसका भी खतरा है। यहाँ पे वहाँ पे एक कहीं टूटी हुई है, हम बाहर निकलने से भी डरते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा भी अनसेफ है, यहाँ पे कोई नहीं बाहर निकलता बाहर।
गुज़िश्ता दिनों जिला कठुआ के रंजीत सागर झील में फौज का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इसमें लापता हुए 2 पायलट्स की तलाश 12 रोज से जारी थी। पानी में जीरो विजिबिलिटी की वजह से इस काम में मुश्किलात पेश आ रही थी। अब फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 12 रोज बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल की लाश बरामद की है। बताया जाता है कि पानी के 80 फीट नीचे से उनकी लाश बरामद की गई है। SSP कठुआ का कहना है कि काफी मशक्कत के बाद ये कामयाबी मिली है। इन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दूसरे लापता पायलट का भी पता लगाया जाएगा। जिस एरिया में चॉपर क्रैश हुआ था, दैट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, और उसके बाद NDRF की टीम्स आई, नेवी के जो स्पेशलाइज्ड डीप वाटर डाइवर्स है और कुछ इक्विपमेंट के तहत 15 तारीख को कल शाम को 6 साढ़े 6 बीच में 2 जो मिसिंग पायलट्स थे उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल अबीद सिंह जो हैं उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई थी, और बाकी का जो रैकेज है चॉपर का और बाकी जो दूसरी पायलट की डेड बॉडी है वो अभी भी नहीं मिली है। उनकी सर्च जो है वो चल रही है। होली के जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे STP और SHOs ने उन्होंने बताया था कि उसका रैकेज शायद उन्होंने लोकेट कर दिया है कि किस पार्ट में है लेक के। मुझे लगता है कि डीप वाटर में प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में उसको भी वो। फिल्म अदाकार आमिर खान कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के अगले एडिशन में शिरकत करेंगे। फेस्टिवल डायरेक्टर मुश्ताक अली खान और मीडिया एग्जीक्यूटिव इदरीस बख्तियार ने श्रीनगर में आमिर खान से मुलाकात की। इस दौरान आमिर खान ने कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा और इसमें शिरकत के लिए अपनी हामी भरी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के ज़िम्न में आमिर खान इन दिनों श्रीनगर में हैं। मैं कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 4 साल इतनी कामयाबी के साथ उन्होंने ये फेस्टिवल चलाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कश्मीर में एक फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है और इतने लोग आए हैं यहाँ फिल्में देखने के लिए, और फिल्म के पर्सनैलिटीज़ भी आए हैं फिल्मों के बारे में बात करने के लिए। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द फिल्म फेस्टिवल एंड मुश्ताक अली फॉर द वंडरफुल वर्क दैट दे आर डूइंग, एंड मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं भी आ पाऊँगा। एक दफ़ा ये कोविड सब बंद हो जाए, हम लोग ट्रैवल कर पाएँ आसानी से, तो उम्मीद है मैं भी आ पाऊँगा कश्मीर फिल्म फेस्टिवल में, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कश्मीर के बासलाहियत नौजवान ना सिर्फ अपने लिए रुझान साज कैरियर का इंतखाब करते हैं, साथ ही नाम, शोहरत और बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए काम करते हैं। कई काबिल नौजवान शुमाली कश्मीर के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 FM से जुड़े हैं। रेडियो चिनार शुमाली कश्मीर के नौजवानों के लिए मशअल राह है। देखें इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन की खास रिपोर्ट। कश्मीर आपने ट्यून किया है रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और आप रेडियो चिनार 90.4 FM को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। 6 महीने से भी कम वक्त में रेडियो चिनार ने काफी मकबूलियत हासिल करी। रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और यहाँ रेडियो चिनार ने जहां बासलाहियत नौजवानों को रोजगार फराहम किया, वहीं वादी खासकर शुमाली कश्मीर के हुनरमंदों को मंजर आम पर लाया है। फनकारों, खिलाड़ियों, उभरते मौसीकारों, समाजी कारकुन और दीगर बासलाहियत नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है ताकि उनके हुनर को फरोग दिया जा सके। नौजवानों का कहना है कि कश्मीर के ज्यादातर रेडियो स्टेशन श्रीनगर या उसके आसपास इलाकों से काम करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने हुनर का मुजाहरा करने का कम ही मौका मिलता है। रफियाबाद के एक नौजवान का कहना है कि रेडियो चिनार ने उन्हें फोक सिंगिंग के हुनर को बढ़ावा देने का मौका फराहम किया है। समाजी कारकुनों का कहना है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से समाजी बुराइयों से बचने के लिए मालूमात फराहम की जाती है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी रहती है कश्मीर में। तो आज मैं रेडियो चिनार दूसरी बार आया हूँ। तो रेडियो चिनार जो है वो एक रेडियो स्टेशन है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, जहाँ पे हमें मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। रेडियो चिनार एक ऐसा यंगस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, एक आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म है, या अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें उनके लिए एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है नॉर्थ कश्मीर में जहां पे वो अपना टैलेंट दिखा सके। यूथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल एक्टिविज़म के हवाले से बात करें या स्टूडेंट एक्टिविज़म के हवाले से बात करें, तो रेडियो चिनार हमेशा पहले स्टेप पे होती है। सोपोर के माजबुग इलाके में वाक़ रेडियो चिनार ने कई नौजवानों को रोजगार फराहम किया है।
FM स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे रेडियो जॉकी का कहना है कि अब तक कई बासलाहियत नौजवानों के इंटरव्यूज नश्र किए गए हैं। टैलेंट की तो मतलब कोई कमी नहीं है कश्मीर में, लेकिन टैलेंट को आगे लाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेडियो चिनार ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है और हमारे साथ यहाँ पर और भी जो है 3 लोग और काम करते हैं। यहाँ पर 3 RJs और हैं जिनको यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म और भी आगे बढ़े। रेडियो स्टेशन के हेड RJ साहिल मुजफ्फर का कहना है कि कश्मीर के छुपे हुए टैलेंट को मंजर आम पर लाने के लिए FM स्टेशन शुरू किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की तहजीब व सक़ाफ़त, रिवायात, खान पान वगैरह को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेडियो चिनार को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो रिस्पांस हमें लोगों ने यहाँ पे दिया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ईमेल्स, थ्रू फ़ोन कॉल्स, एंड इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट के साथ साथ जो हमारा लोकल यहाँ पे यूथ है, जो टैलेंटेड बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको हम अपनी स्टूडियो बुलाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर उनका जो टैलेंट है वो सोशल मीडिया और रेडियो के थ्रू बाकी दुनिया तक पहुँचता है। रेडियो चिनार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रसाई हासिल कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से सजाद हुसैन की रिपोर्ट। दर्दो गम तैनाल ज़री मेरे जिला गांधरबल के इलाके चिरवान में वाहिद खेल का मैदान खस्ता हाली का शिकार है। मैदान की खस्ता हाली की वजह से खेल से मुंसलिक अफराद और खिलाड़ियों में मायूसी देखी जा रही है। लोगों के मुताबिक 3 साल कबल पड़ोसी गांव में मिट्टी का तोदा गिरने के बाद मलबे को ग्राउंड पर फेंक दिया गया। उस वक्त यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द ही मैदान को साफ करके पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। ताहम मैदान की हालत जू की तू बनी हुई है। मुतादिद बार दरखास्त के बावजूद मुताल्लिका महकमे के अफसरान ने कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने मैदान को दोबारा साफ करने की अपील की है। यहाँ पे अच्छा सा प्ले ग्राउंड था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। इसमें बहुत सारे बच्चे, मान लो 10-15 विलेजेस के बच्चे जो आ रहे थे खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से जो वो मटेरियल था, उस टाइम रोड जो ब्लॉक हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने जो ये मटेरियल है यहाँ पे डंप कर दिया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे आपको अच्छे से प्ले ग्राउंड बना के देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ आप ये देख सकते हैं अभी ये वीरान है, वैसा का वैसा ही है ये ग्राउंड। देयर इज नो कनेक्टिविटी। अब रोड जो है, रोड की प्रॉब्लम है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रोड जो है वो 2 साइड से न लिया जाए, बल्कि एक साइड से, अगर वो इट्स बेटर एरिया वहाँ से अगर लिया जाए तो जो एरिया बाकी बचेगा तो वो ग्राउंड के लिए जो है वो लिमिटेड। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल हासिल होने के बाद कश्मीर के नौजवानों की खेल कूद की तरफ दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है। ताहम खेलों के बुनियादी ढांचे मुस्तहकम न होने से नौजवानों में मायूसी पाई जा रही है। पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर JKPCC के जरिए गुज़िश्ता 5 बरसों से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्टेडियम का तकरीबन 80% हिस्सा यानी काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन JKPCC की अदम तवज्जुही के बायस स्टेडियम का बाकी काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। अभी यहाँ का जो यूथ है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है विद द गवर्नमेंट, बहुत ही ज़्यादा। अभी आपने देखा रिसेंटली ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया इंडिया को। यहाँ के यूथ में बहुत ही जुनून आ गया, ऑब्सेशन फॉर स्पोर्ट्स आ गया। यहाँ पे आते खेलते, लेकिन आपको पता है ये इंडोर स्टेडियम पिछले 5 साल से बन रहा है, लेकिन पाई तक मील तक नहीं पहुँचा अभी। काम तो हो गया है, 95% काम तो इस वक्त मुकम्मल है, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाला है, इसमें फ्लोरिंग डालना बाकी है। उसके लिए उसने टेंडर निकाला है। वो पुलवामा का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको वो मिला है, अब उसको फॉलो कर रहा है बाहर वाली कंपनियों के साथ। इस महीने में उसने बोला मैं लाऊंगा और इस डालूंगा। अब बाकी है सफाई सुथराई, वो भी करेंगे, बस ज़्यादा काम नहीं। हमने कंप्लीट लगभग हमने DIPR की श्रीनगर यूनिट ने टैगोर हॉल श्रीनगर में कल्चरल शो का एहतमाम किया। यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कल शाम इसका इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी कल्चर यूनिट श्रीनगर के इश्तराक से हुब्बुल वतनी पर मबनी फोक म्यूजिक शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कल्चर यूनिट श्रीनगर के फनकारों और कई दिगर नामवर फनकारों ने खूब समा बांधा। कई सरकर्दा शुरा ने कश्मीरी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जबानों में अपना कलाम पेश किया। कल्चर ऑफिसर कश्मीर ने बेहतरीन मुजाहरा करने पर
फनकारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कल्चर के ज़रिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, इससे अमन व अमान का पैगाम आम होता है। AECO सैयद शकील शान प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे थे। उन्होंने उभरते फनकारों को खास तौर पर मुबारकबाद दी। कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी NZCC के अहदेदार और खासी तादाद में फ़न व अदब से जुड़ी शख्सियात ने तकरीब में हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कल्चरल एकेडमी ब्रांच डोडा ने शाम गज़ल का एहतमाम किया। टाउन हॉल डोडा में यौम आज़ादी के मौके पर शाम गज़ल का एहतमाम किया गया। इस दौरान मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। मुख्तलिफ ज़बानों में गाए गए गाने इस मौके पर गाए गए। DC डोडा विकास शर्मा, म्यूनसिपल कौंसिल के सदर वैद प्रकाश और दिगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। DC ने तमाम मकामी फ़नकारों का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा। इन्होंने कहा कि इन फ़नकारों को आला सतह पर फ़रोग़ देने की कोशिश की जाएगी। तेरा नक्शा सब डिवीज़न रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हादसात या कुदरती आफात के वाक़यात। हिमालयन QRT रामसू के जज्बे खिदमत खल्क का एतराफ़ करते हुए यौम आज़ादी के मौके पर इन रज़ाकारों के काम की लोगों ने खूब सताइश की। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आदम तवज्जुही के शिकार हिमालयन QRT के पास गाड़ी समेत दिगर साजो सामान की कमी है। कई बार हुकाम से अपील के बावजूद आज तक इस तंजीम को सामान से लैस नहीं किया गया। सरपंच रामसू ने भी टीम को गाड़ी व दिगर सामान फराहम करने की मांग की है। स्टेशन जो इन तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारण की वजह से, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। इनके पास कोई ये देखिए आप देख रहे हो जैकेट्स वगैरह इनके ये भी प्राइवेट बंदे खुद खरीद के ले आए हैं। इनके पास जूता नहीं है। हमने बार बार गुहार लगाया स्टेशन से भी, इवन के DC साहब से भी हमने ये बात की थी कि उनके बारे में सोचा जाए, कम से कम इनको अपना औजार मिले, रस्से मिले, इनको जूते मिले, इनको टार्च मिले, गाड़ी। सबसे बड़ी बात इनको गाड़ी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं और ये बंदे रात दिन एक करके अपने जान की बाजी लगा के हमारे ये मसले जो है मुसीबत के आफत काल में यही हाल करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इनको मुकाम नहीं मिलता है, इनको मिलना चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। इन टॉक कश्मीर चैप्टर और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ सेंटर ने मुश्तरका तौर पर यह वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया। वर्कशॉप के दौरान मुक़र्रिरीन ने कश्मीरी कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हमारी लैंग्वेज, उन्हें क्या सोचा जो आज हम हैं, हम उसी का एक हिस्सा है। हम उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हो सकते हैं, थोड़ा चेंज हो, लेकिन वो उनकी वजह से जो हमारे थॉट्स कहाँ से आए, इन्हीं लोगों से जो इन कब्रों में दफन है, सदियों से जो चलता है। तो ये जो हमारे लिए एक ये कल्चर जो है इन वैक्यूम में, ये टेक्स सेंचुरीज टुगेदर टू बिल्ड अप ए कल्चर। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये जो लोग हमारे से पहले थे उनकी वजह से जो आज हम हैं, हम हर एक शख्स में आप देख लीजिए कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। बीजेपी ने साबिक वज़ीर आज़म आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और दिगर लीडरान ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी लीडरान ने कहा कि वाजपेयी के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास जगह थी और मौजूदा वज़ीर आज़म उनकी राह पर ही चल रहे हैं। जैसे अटल जी ने कहा कि हम जैसे दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, उसी वायदे पर हम आज के प्रधानमंत्री जी भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे आज के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं वो वही रास्ता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था। उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भी और विशेषकर जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में उसी रास्ते पर आगे बढ़ने को आगे बढ़ रही है। बात है अगर वो हमेशा हमारा हमसाया मुल्क हमेशा हमारे साथ गलत करता रहे तो हम कितनी देर अपना गाल सामने करेंगे। तो इसलिए हमें ये भी समझना है आज के दौर में, क्योंकि वक्त बदल गया है, वक्त का पहिया ही बदल चुका है। अब टाइम आ गया है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और दूसरे मुल्कों को भी ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है और जब वो मुल्क हमारे साथ वैसे चलेंगे तो शायद उनके मुल्क में भी तरक्की।
उधर जम्मू में भी बीजेपी की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू में वाक़ई पार्टी के दफ्तर में एक तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना और दीगर कारकुनों वली ड्रान ने आंजहानी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी कारकुनों ने वाजपेयी के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। ज़िला पुलवामा के गांगू इलाके के नौजवानों ने ज़राकाना तौर पर खून की अतिया का कैंप मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर गांगू और मुल्हका इलाकों के नौजवानों ने अपनी खून का अतिया पेश किया। नौजवानों ने कहा कि मुहर्रम के मुतबर्रुक अय्याम में आम लोगों की मदद करने का मकसद करबला के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है। लोगों के लिए इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप भी मुनक़्क़िद किया गया। डॉक्टरों ने लोगों का इलाज मुआलजा किया और अद्वियात मुफ्त में तक़सीम की। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GMC कठुआ में PM केयर के तहत तैयार किए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और टीकाकारी के अमल का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि PM केयर के तहत 4 प्लांट तैयार किए गए हैं और 5वां भी जल्द तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं और वज़ीर आज़म इस हवाले से काफ़ी संजीदा भी हैं। उधर ज़िला अस्पताल करगिल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 18 साल से कम उम्र के नौजवानों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। LAHDC करगिल के चेयरमैन व CEC फिरोज़ अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया। खान ने कहा कि कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया था। इन्होंने कहा कि इस उम्र के ज़्यादातर अफराद को कोविड वैक्सीन नहीं दी गई है। इन्हें कोविड से मुतासिर होने से बचाने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा ज़रूरी है। ब्लॉक सतह पर भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद होंगे। वहीं LHDC करगिल के चेयरमैन व CEC फिरोज़ खान ने स्कूल बस का इफ्तिताह किया। चीफ एजुकेशन अफसर नज़ीर अहमद वानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिलमू में तलबा में टैबलेट्स भी तकसीम की गई। उधर दिल्ली की रज़ाकार तंजीम डॉक्टर फॉर यू ने पुलवामा इंतज़ामिया को एम्बुलेंस गाड़ी वक्फ की है। DC ऑफिस पुलवामा में तंजीम के अहदेदारों ने एम्बुलेंस को DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी को सौंपा। DC ने BMO पुलवामा की निगरानी में PHC ठहाब को ये गाड़ी फराहम की है। DC ने तंजीम का शुक्रिया भी अदा किया। कोविड पेशेंट्स के लिए हमने दिया है कि कोविड पेशेंट को इजीली हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स फॉर यू जो मेडिकल NGO है, हमने यहाँ के पीडियाट्रिक वार्ड के लिए भी हमने काफ़ी इक्विपमेंट्स दिया। अपग्रेडेशन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, ICU के लिए भी मदद कर रहे हैं। हर बात है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम से क्या है कि कम्युनिटी के अंदर एक नया जज्बा जो है वो पैदा होता है और उसके बेसिस पे जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेंथन होता है। एंड दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो उस बेसिस पे जो है इन्होंने एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे दी है और इन्होंने वैक्सीनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे यहाँ पे पिछले 1 साल से लगभग सयाहती मकाम गुलमर्ग में फ़ौज की पीर पंचाल ब्रिगेड की जानिब से शान तिरंगा के नाम से 12 किलोमीटर हाफ मैराथन रोड रेस का एहतमाम किया गया। वादी भर से लड़कियों के साथ साथ 100 से ज़्यादा नौजवानों ने शिरकत की। ये रेस मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स में हुई। 18 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विनीत दलाल ने हरी झंडी दिखाकर इस रेस को रवाना किया। नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर इस रेस में हिस्सा लिया और पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। खिलाड़ियों ने फौज का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। उधर अनंतनाग के गुलशनाबाद इलाके के लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को दूर करने के लिए जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। लोगों का कहना है कि 3 बरस कबल UEED ने ड्रेनेज निज़ाम की तामीर के लिए सड़क की खुदाई की थी, लेकिन तब से लेकर सड़क की तामीर नौ का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अभी भी लास्ट टाइम मेरी पर्सनली बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा इमीडिएटली इसको टेकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और यहाँ चलना भी मुश्किल है। माने कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। बच्चन बन स्कूल गसन बच्चे बेमार मेहरबानी कर गुजारिश कि मैकडम आजाद बन टोटल पकन रूद वूद पेवान UD वालों अम रोड कड़ी ड्रेन यह मैकडम राइज सड़क दोप तम सात दिमो खान क्या दोप ना खनो ड्रेन सती त्रो मैकडम, मगर तिमन 3 वरी गई 4 वरी हेतुन अचन वन तान कोर पूछताछ।